Welcome back, my dear students of grade 6. Today we will going to learn about the next physical feature of India, that is peninsular plateaus. In the last video we have studied about the northern plains and the division of the northern plains. Today the next physical division, that is peninsular plateaus, an area of a land projecting out of or into the sea or completely surrounded by water on its three sides is known as peninsula. तो फर्स्टली हम ये स्टडी करेंगे कि पेनिनसुला होता क्या है. पेनिनसुला क्या होता है? जो सी के अंदर कोई भी जो लैंड मास सी के अंदर तक होता है, जहाँ ऐसी लैंड मास जिसके थ्री साइड पर वाटर हो, दैट इज़ नोन एज peninsula. See in this picture, this is the landmass and surrounded by the water on the three sides. So that part is known as peninsula. Like this, the southern part of India is also a peninsula. The Peninsular Plateau of India is one such landmass. जो इंडिया का साउथ का पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम है. पेनिनसुला उसके थ्री साइड्स पर वाटर है. सी इन दिस मैप, दिस इज पेनिनसुला. दिस पार्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज पेनिनसुला. अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड हियर Indian Ocean. Now this part of the India is surrounded by water on the three sides. That is why it is known as peninsula. Clear? It was formed due to the accumulation of thick layers of basaltic lava. ये जो plateaus हैं in the peninsula part, they are formed from the volcano. volcano में से जो लावा निकलता है उसकी जो लेयर्स अकमुलेट होती गई हैं उनसे ये प्लेट्यूस बने हुए हैं. इट कवर्स द टोटल एरिया ऑफ 12,72,000 स्क्वायर किलोमीटर. द प्लेट्यू, द पेनिनसुला प्लेट्यू इज divided into two major land masses, that is the northern plateau and the Deccan plateau. Make it clear with the help of map. See in this map, our peninsula plateau, that is this part, is divided into two parts by the Narmada river. Here is the Narmada river, the upper part of the Narmada river. This part is known as northern, and this part under the Narmada river, that part is known as Deccan plateau. The northern plateau, again the northern part of the plateaus, that is above the Narmada river, divided into two parts, Malwa plateau and the Chota Nagpur plateau. See in this, this is the Malwa plateau and this part is Chota Nagpur plateau. Northern plateaus divided into two parts. Malwa plateau, it lies between Aravalli range in the north and the Vindhyas in the south. Satpura range separates it from Deccan plateau in the central part. The eastern extension of the Malwa plateau is known as Bundelkhand and Baghelkhand in the southern Uttar Pradesh. Let us make it more clear with the help of map. See in this map, this is our Malwa plateau. Aravalli range और विंध्या रेंज, इनके बिटवीन के बीच में जो प्लेट्यू है दैट इज़ नोन एज मालवा प्लेट्यू. हियर इज द सतपुड़ा रेंज. सतपुड़ा रेंज सेपरेट इट फ्रॉम द डेक्कन प्लेट्यू. ये डेक्कन प्लेट्यू और मालवा प्लेट्यू को ये सतपुड़ा रेंज सेपरेट करती है. मालवा प्लेट्यू के ईस्ट साइड, यानी इस साइड, ईस्ट साइड दो एक्सटेंशन है. दीज आर नोन एज
Bundelkhand and Bagelkhand. This is Bagelkhand, this is Bundelkhand. Clear that these are the two extensions of the Malwa Plateau. Next is Chota Nagpur Plateau. That is the second division of the northern plateaus. A series of plateaus at different level of elevation together known as Chota Nagpur Plateau. जहाँ पर जो प्लेट्यूज हैं वो अलग अलग हाइट के हैं. एलिवेशन मीन्स हाइट, अलग अलग हाइट के हैं और एक सीरीज़ में बने हुए हैं. जैसे माउंटेन रेंज होती हैं वो एक सीरीज़ में बनी होती हैं. लाइक दैट इट इज़ आल्सो इन द सीरीज़ like this. These are the series of the plateaus in the Chota Nagpur region. Drained by the river Damodar, tributary of Ganga. जहाँ पर एक रिवर है जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, दैट इज़ नेम दामोदर, उससे ये एरिया ड्रेन होता है जहाँ पर बहती है. इट इज़ द ओल्डेस्ट जोग्राफिकल डिवीज़न विद मैनी मिनरल डिपॉजिट. जहाँ पर ज़्यादा मिनरल मिलते हैं, ज़्यादा माइंस हैं. From that we can get the different type of mineral like coals, aluminium, copper, etc. That is the oldest geographical division. और सबसे oldest means सबसे पुरानी geographical division है and known for the mineral deposit. See in this map, this is our Chota Nagpur Plateau. यहाँ पर है छोटा नागपुर प्लेट्यू और जहाँ पर इधर से एक रिवर बहती है दैट इज़ known as Damodar river. Clear? Next is Deccan Plateau. It is separated from the Malwa Plateau by the Vindhyas range. जो मालवा प्लेट्यू है नॉर्थन प्लेट्यू का पार्ट, उससे जो विंध्यास रेंज है, विंध्यास माउंटेन है, वो इन दोनों को अलग करती है. एवरेज एलिवेशन हियर इज 600 मीटर. एलिवेशन मीन्स जो एवरेज हाइट है प्लेट्यूज की जहाँ पर 600 मीटर तक है. द प्लेट्यू इज इन ट्राइंगुलर शेप. द रीजन ज्वाइनिंग मध्य प्रदेश गुजरात इन द नॉर्थ वेस्ट इज नोन एज डेक्कन ट्रैप. मध्य प्रदेश और गुजरात को जो प्लेट्यूज ज्वाइन करते हैं दैट पार्ट इज नोन एज डेक्कन ट्रैप. वी विल मेक इट क्लियर विद द हेल्प ऑफ मैप. और मेन रिवर्स यहाँ पर कौन सी हैं? गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. See in this map, this is our Deccan Plateau and its shape is like a triangle. और विंध्यास रेंज, दिस इज़ द विंध्या रेंज. और जहाँ पर है आपका मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू को सेपरेट करती है विंध्यास रेंज. इट इज़ ऑफ ट्रायंगुलर शेप, जहाँ पर वो नैरो है और जहाँ पर वाइड है तो ट्रायंगल की शेप बनती है. और गुजरात और मध्य प्रदेश को जो प्लेट्यूज जहाँ पर ज्वाइन करवाते हैं दैट इज़ नोन एज डेक्कन ट्रैप. एंड मेन रिवर्स हियर आर गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. द नेक्स्ट फिजिकल फीचर इज द घाट. घाट क्या होते हैं इन फिजिकल ज्योग्राफी? अ स्कार्प इज़ अ फॉल्ट और स्टीप क्लिफ. जो स्टीप लैंड मास होते हैं दैट इज़ नोन एज स्कार्प. तो ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड ऑफ पेनिसुला इसी तरह के स्कार्प हैं, उसी से वो बॉर्डर है. दैट इज़ नोन एज ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट. एंड द टू घाट्स कन्वर्ज एट द नीलगिरी हिल्स. दोनों घाट जो है ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट आपस में मिलते हैं कहाँ पर? नीलगिरी हिल्स एट द साउथर्न टिप ऑफ इंडिया. Make it clear with the help of map. These are the western Ghat and these are the eastern Ghat, and that make the boundary line of the Peninsula Plateau. And both western Ghat and eastern Ghat meet at the place that is Nilgiri Hills. जहाँ पर है नीलगिरी हिल्स, जहाँ पर दोनों आपस में मिल जाते हैं. Clear that? Western Ghat. These are stretching from the river Tapi to Kanyakumari. Western Ghat तापी रिवर से कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं. टोटल लेंथ इज 1600 किलोमीटर
पैरेलल टू द कोस्ट, और जो कोस्ट लाइन है वेस्टर्न कोस्ट लाइन के बिल्कुल पैरेलल चलते हैं और इनकी टोटल लेंथ कितनी है 600 किलोमीटर है। एवरेज हाइट इज़ 1200 मीटर और कुछ पीक्स जो हैं काफ़ी हाइट की हैं, दैट इज़ 2400 मीटर। ईस्टर्न घाट bordering the Deccan Plateau on the east are known as ईस्टर्न घाट। जो डेक्कन प्लेटू की ईस्ट साइड में है उसकी बॉर्डर को बनाते हैं, दैट आर नोन एज ईस्टर्न घाट। इन हाइट दे आर लोअर दैन द वेस्टर्न घाट, उनकी हाइट जो वेस्टर्न घाट है उनसे थोड़ी सी कम है। ईस्टर्न घाट्स आर आल्सो ब्रोकन इनटू स्मॉल पार्ट्स। रिवर्स सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, जो जहाँ बहने वाली रिवर्स हैं उनके कारण जो ईस्टर्न घाट है ब्रोकन है, एक कॉन्टीन्यूस सीरीज नहीं है। मेक इट क्लियर विद द हेल्प ऑफ मैप। सी इन दिस मैप दीज आर द वेस्टर्न घाट और जो पैरेलल चलते हैं कोस्टल लाइन, ये कोस्टल लाइन है वेस्टर्न की, उसके पैरेलल चलेंगे और 1600 की लेंथ है और जो एक कॉन्टीन्यूस सीरीज है, ब्रोकन नहीं है। एंड दीज आर द ईस्टर्न घाट, दीज आर ब्रोकन बिकॉज ऑफ द डिफरेंट रिवर्स दैट फ्लो इन देयर एरिया। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बिकॉज ऑफ दीज rivers these are the broken ghats and their height is less as compared to the western ghat. That's all for today's lecture. I hope all of you understand about the peninsula plateau and its division. In the next video we will study about the coastal plains. Thank you for watching the video.